હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ નામણી સ્કૂલ જામનગર. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં સ્ટાન્ડર્ડ 7 ગુજરાતી મીડિયમ સબ્જેક્ટ હિન્દી એમાં લેસન નંબર 3 કુત્તે કી વફાદારી કે જે એક વાર્તા છે એ આપણે સમજીશું. તો ચાલો. कुत्ते की वफादारी जो किसने लिखा है? लल्लू भाई रबारी, इसने ये पाठ लिखा है. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है કે કોઈ પણ સ્વામી એટલે કે એનો માલિક કે જે તેના જાનવર પ્રત્યે એટલે એના જે પાળેલું હોય એ પ્રાણી પ્રત્યે કેટલો વફાદાર હોવો જોઈએ એ વાત અહીં બતાવવામાં આવી છે. कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है. ઘણીવાર આપણે ઉતાવળે કોઈ નિર્ણય લઈ લેતા હોય છે, બરાબર, અને પછી આપણે પછતાવું પડે છે. लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है. बराबर. બંજારે એટલે એક એવી જાતિ છે, બરાબર, કે જે પહાડી વિસ્તારોમાં અને એ બાજુ વધારે જોવા આપણને મળતી હોય છે, બરાબર, કે જે ઢોરોને ચરાવવાનું काम करती હોય છે. उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राकणपुर नामक एक छोटा सा नगर है. वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है. समाधि और वह भी कुत्ते की. यह जानकर आश्चर्य हो गई. उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली एक कथा है. આજે પણ મિત્રો જોવા મળે છે કે ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ જિલ્લામાં એક રાકણપુર નામનું ગામ છે, નાનકડું, બરાબર, એક નગર જેવું. તો આજે પણ ત્યાં એક તળાવ છે અને ત્યાં કિનારા પાસે કૂતરાની ત્યાં સમાધિ આવેલી છે. અત્યારના સમયમાં પણ છે ત્યાં. અને આ જાણીને આપણને આશ્ચર્ય થાય કે આ કૂતરાની વાળી સમાધિ, અને એને જોઈને આપણે આશ્ચર્ય થાય. અને એ વાંચીને ત્યાં જે લેખ લખેલો છે વાંચીને આપણું હૃદય છે એ પણ આમ આઘાત લાગે એવી વાત કરેલી છે. ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો આ કેનું છે? લાખો બંજારો, बराबर. पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे. પહેલાંના સમયમાં વ્યાપારનું કામ, સામાન એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવાનું કામ કે જે કોણ કરતા? બંજારે, કે જે ઢોરો પણ પોતાની સાથે રાખતા. एक बंजारा था. वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था. लाखों का व्यापार था उसका. छे ऊँटों पर તે ગામડામાં માલ સામાન જે છે એ લઈ અને શહેરોમાં લઈ જતો. ગામડામાંથી માલ સામાન બધો એકત્ર કરી અને તે શહેરોમાં લઈ જતો, બરાબર. અને કઈ કઈ વસ્તુ? મિશ્રી, ગુળ, મસાલે, આવી બધી વસ્તુ તે ગામડામાંથી ભરી અને શહેરોમાં લઈ જાય. અને ઘણીવાર તે શહેરમાંથી ગામડા તરફ પણ લઈ આવતો. લાખો કા વ્યાપાર થા ઉસકા. લાખો કરોડો રૂપિયાનો વ્યાપાર કરતો. કઈ કઈ વસ્તુ? મિશ્રી અને ગુળ મસાલે. મિશ્રી એટલે થાય ચીની, શક્કર અથવા તો ખાંડ, બરાબર. અને ગુળ મસાલે એટલે રોજબરોજ આપણે જે મસાલા છે વાપરતા હોય તે. એ બધું તે ગામડામાંથી શહેરમાં અને શહેરમાંથી ગામડામાં રોજ એવો વેપાર કરતો અને લાખો કરોડો रुपया से एमांथी कमातो. इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे. याद रखना, लोग बंजारे को लाखा बंजारा ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि वो रोज लाखों का व्यापार करता था, इसलिए. लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था. अब कुत्ते की बात आई कि लाखा के पास क्या था? एक सुंदर कुत्ता. कुत्ता बड़ा वफादार था. वो तो आप सबको मालूम है, कुत्ता बहुत वफादारी होता है.
रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। रात को वो क्या करता था, जहाँ लाखा बंजारा अपने सामान को रखता था उस पड़ाव की रखवाली करता था। यानी कोई चोर लुटारे उस पड़ाव की तरह आते दिखाई दे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था, लेकिन एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। उसे बहुत नुकसान हुआ, रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राखनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी सब जो बात थी वो बताई, अपनी मुश्किलें उसको बता दी उसे। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? લાખા વંચાને એકવાર એવું થયું કે પૈસાની અછત થઈ, ઘણા બધા રૂપિયાની એને ખોટ થઈ। ત્યારે એ રાકનપુર ગામ કે જ્યાંનો જે શેઠ હોય, બરાબર, રાકનપુરનો જે શેઠ હોય એની પાસે ગયો અને તેને વિનંતી કરી કે મને થોડા રૂપિયાની જરૂર છે। તો શેઠે એમ કીધું કે તારે એના માટે કાંઈક ગીરવી રાખવું પડશે, બરાબર। જેમ આપણે કેમ બેંકમાં લોન લઈ તો બેંકવાળા છે આપણી પાસે કાંઈ વસ્તુઓ ગીરવી મુકાવે, બરાબર, મિલકતો હોય તે। તો આની પાસે કાંઈ મિલકતો હોતી નહીં, અને જે હતું એક માત્ર એનો જે કૂતરો છે એ તો વફાદાર ગીરવે રાખવા માટે। તો सेठ ने एम कीधु कि तारे कहीं गिरवे रखવું પડશે। लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, जो मेरे पास था वो सब कुछ चला गया। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए। मुझे कहूँ छूँ एनी पर विश्वास करो और मैंने रुपया आपी दो। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। समय आवशे त्यारे 1 वर्ष में हूँ तमने ए रकम चूकवी आपीश। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता तो है ना, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम्हारे सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। शू कीधुं सेठे कि तारी पासे जे आ कूतरो छे ए तू मने जमानतना स्वरूपमां, एटले मिलकतना स्वरूपमां, जमानत मिलकत एना स्वरूपमां तू मने त्या आपी दे, અને જ્યારે તું મને બધા પૈસા મને આપી દઈશ ત્યારે હું તને આ કૂતરો પણ પાછો આપી દઈશ। बंजारे को दुख तो हुआ, बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, उसके पास कोई भी नहीं था उपाय। रुपये लेकर वह चला गया। इसलिए लाखा बंजारे ने अपने कुत्ते को सेठ को यहाँ दे दिया और रुपये ले लिया। ओके, चलो आगे बात करते हैं। कुछ दिन बीते, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, क्योंकि कुत्ता तो वफादार है, जिसके यहाँ रहता है उसकी वफादारी वो करता ही है। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। शू थयुं कि जंगल में जे चोर हता एणे बधो सेठनो माल सामान छे ए जमीन में गाड़ी दीधो, बराबर, एटले के दाटी दीधो, अने त्यांथी ते 9-11 त्यांथी ते भागी गया। अने चोरने तो खबर होई कि क्या एने सामान छे से संताड़्यो होय, અને કૂતરોની પાછળ હતો એટલે કૂતરાને પણ ખબર હતી કે ચોરોએ માલ સામાન છે શેઠનો આ જગ્યાએ સતાડ્યો છે। એટલે કૂતરો ભસતો ભસતો શેઠને, તમે જોઈ શકો છો અહીં, ભસતો ભસતો શેઠને એ જગ્યાએ લઈ ગયો કે જ્યાં ચોરોએ તેનો માલ સામાન છે સંતાડ્યો હતો। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए, आश्चर्य पड़ गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। पिक्चर में आप देख सकते हो कि कुत्ता जो है उस सेठ की धोती पकड़ते हुए उसको जंगल की ओर ले जा रहा है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया।
બરાબર, થોડીક માટી છે કૂતરાએ ખોદી ત્યાં જમીનમાંથી બધો જ સામાન છે એ મળી ગયો। बराबर। सेठ की खुशी का कोई चारा या कोई पार न रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास जाओ, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। जे हवे जो समझवा जेवुं छे के घरे जईने सेठे शुं कर्युं, एना गळामां चिट्ठी बांधी दीधी। बराबर, एना पट्टो जी होय त्याने बांधी दीधी अने एमां एवुं लखेલું हतुं के कूतरा भाई जा, हवे तू तारा मालिक पासे, एने एम कीधुं पहेला के जा तू तारा मालिक पासे, लाखा बंजारा पासे, कारण के आजे तू मुक्त छो। अने कूतरो तो एकदम खुश थई गयो, एना मालिकने मळवा माटे एकदम अधीरो थई गयो अने झड़पथी भागवा लाग्यो। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। व्यापार में पण एने घणो बधो रुपयो मळ्यो। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से कुत्ता भी आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। तेने दूरथी जोई लीधुं लाखा बंजाराए के मारो कूतरो लागे छे, आ दूरथी आवी रह्यो छे ते। उसने वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। तेने विश्वासघात कर्यो लागे। मैं मारी जे बात हती एना उपर तेणे विश्वासघात कर्यो एवुं लागे छे। उसने बेवफाई की, दगो कर्यो लागे एने सेठ साथे एवुं लाखा बंजाराने लाग्युं। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव न देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। तेणे कांई जोयुं नहीं, बस तेणे पोतानी लाकड़ीथी कूतरा पर प्रहार से शुरू कर दीधो। बेचारा कुत्ता बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे कुछ समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। शू लख्યું હતું કે લાખા તારા કૂતરાએ સમયસર મને પૈસા આપી દીધા છે, એટલે खुश થઈને હું તારા કૂતરાને મુક્ત કરું છું। उसने मेरी घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। तेणे मारा घर में जे माल सामान चोरी थी ते मने पाछो अपाव्यो छे। खुश होकर मैंने इसे मुक्त किया है। खुश थईने मैं आने स्वयं मुक्त कर्यो छे। बराबर। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय मैंने यह क्या कर दिया, है ना। उसने पहले बात को सुना नहीं, समझा नहीं और तुरंत ही कुत्ते के ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बेचारा कुत्ता, जो कि उसने तो सेठ के साथ वफादारी की थी और वफादारी करके वो अपने मालिक को मिलने के लिए बहुत उत्साहित हो उठा था, लेकिन ये मालिक ने क्या किया, उसके साथ विश्वासघात किया, यानी कि उसकी बात को अनदेखा कर बिना सोचे समझे सिर्फ उसके ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसे में बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा, लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। हवे कांई थाय नहीं। ज्यारे चकलियो छे ए खेत
પાર કરી જાય પછી કાંઈ થાય નહીં. આપણા ખેતરમાં જે પાક ઉગ્યો હોય બધું ચકલીઓ ખાઈ ગઈ પછી કાંઈ થવાનું? એ તો ચકલીઓ વહી ગઈ, એટલે હવે કાંઈ ફૂટ ફૂટ કર રોવાથી થાય નહીં. બરાબર? એટલે આ પરથી આપણને પણ એક શિક્ષા મળે છે, એક સબક મળે છે કે શું? એ ક્યારેય સોચ્યા સમજ્યા વગર, વિચાર્યા વગર ક્યારેય નિર્ણય લેવો જોઈએ નહીં. उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राघनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है. आ समाधि આવી રીતે ત્યાં આવેલી છે, ક્યાં? રાઘનપુર પાસે. બરાબર? शब्दार्थ: समाधि यानी स्मारक, वफादार यानी स्वामी भक्त, बंजारा यानी एक विचरती जाति, पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना यानी किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, लुटेरा यानी लूटने वाला, डाकू, मिस्री यानी चीनी शक्कर, लौटना यानी वापस आना, मुक्त यानी आसक्त मोहित, शुद्ध यानी ब्याज, शव यानी मृतदेह, गोद यानी आंचल खोड़ो. चलो मुहावरे कौन कौन से? हृदय इला देना यानी हृदय को द्रवित करना, 9-2-11 हो जाना यानी भाग जाना, मार खा जाना यानी नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना, फूटी कोड़ी न होना यानी अत्यंत गरीब होना, आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना, फुट फुट कर रोना यानी जोर जोर से रोना. कहावत: अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा. जैसे हमारी एग्ज़ाम आती है तब एग्ज़ाम के दौरान हम पढ़ते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. पहले से ही हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तो हमें कोई भी मुश्किलें परीक्षा के दौरान होगी नहीं. अभ्यास: चलो नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ है वह वाक्य पढ़िए. जैसे कि समाधि, तो इनसे हमें क्या एक सेंटेंस बना सकते हैं? बंजारे ने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनाई थी. उसके बाद बंजारा, तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान ले जाने का काम बंजारे करते थे. वफादार यानी कुत्ता बहुत वफादार होता है. शव, तो वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा. लुटेरा यानी अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. उसके बाद जमानत, तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो. तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो. उसके बाद सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा. उसके बाद गोद, तो वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा. चलो समाधि क्यों बनाई जाती है? सोचिए. तो किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है. उसके बाद आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम इस कहानी को एक जल्दबाजी का नतीजा यानी कि परिणाम, बराबर, એટલે કે આપણે ઉતાવળે કોઈ નિર્ણય લઈએ તો એનું શું પરિણામ આવે એવું એક શીર્ષક જલ્દબાજી કા નતીજા એવું આપણે આપી શકીએ. પછી બીજું, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. उसके बाद एक कुत्ते का समाधि मंदिर. उसके बाद लाखा बंजारा और उसका कुत्ता. तो ये सब शीर्षक हम
दे सकते हैं। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ता अपना मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को एक वफादार प्राणी कहा गया है। उसके बाद बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी का प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता और चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। चलो उसके बाद क्या है? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया था और चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल सामान जो था वो जमीन में गाड़ दिया था। फिर वे भाग गए थे। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भोग भोग कर वह जो सामान था वो बताने लगा और जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी के खुशी का पार न रहा था तब, और कुत्ते की वफादारी पर मुक्त होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया था। उसके बाद शब्दकोश के क्रम में रखिए। क्या है? सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। तो क्या हम लिखेंगे? आश्चर्य। उसके बाद क्या आएगा? आश्चर्य। उसके बाद आएगा इसलिए, क्योंकि पहला स्वर हम लेते हैं ना, अ आ ई वो। आश्चर्य, उसके बाद इसलिए, उसके बाद आएगा लुटेरा, उसके बाद वफादार, उसके बाद सुंदर और लास्ट में उससे बाद वापस और लास्ट में आएगा सुंदर। ओके। उसके बाद क्या है? यदि आप होते तो क्या करते बताइए। तो आपको लिखना है कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? उसके बाद लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। जैसे कि राजा तो रानी, बराबर, राजा तो रानी, ग्वाला तो ग्वालिन आएगा। उसका अभिनेता तो अभिनेत्री आएगा इधर। उसके बाद राणा तो रानी, ये बराबर है। उसके बाद शेरनी, शेरा। इसमें कुछ मिस्टेक है, क्या आएगा इधर? शेरनी तो शेर, और इधर क्या है? राजा तो रानी, हाँ ये बराबर लगता है, तो राजा रानी। उसके बाद सुनार तो क्या आएगा? सुनारिन। उसके बाद ऊँट है तो ऊँट का क्या होगा? ऊँटनी। लुटेरा तो लुटेरिन। बंजारा तो बंजारिन। सेठ तो सेठानी। ओके। उसके बाद ढांचे पर से कहानी लिखना है हमें, जो आपको लिखनी है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो क्या आएगा? कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरह आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। उसके बाद सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी थी? तो बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था।
परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो, जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब ये कुत्ता भी वापस ले जाना। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? क्योंकि उसने जो पूरा धन था वो वापस कर दिया था। उसके बाद इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए, या जल्दबाजी में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बराबर। चलो आगे हम देखते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है, तो इसमें क्या करना है? घोड़ा तो घोड़ी, सेठ तो सेठानी, उसके बाद बंचारे तो बंचारिन, बराबर। ऊँट तो ऊँटनी, लड़का तो लड़की और खेल रही है, बराबर। यहाँ दूंगा है तो दूंगी। सेठानी ने कहा कि रुपये तो मैं दूंगी। बंचारिन को बहुत दुख हुआ। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़की खेल रही है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शिष्य, नागिन, शिक्षक, घोड़ा, गाय, देव, बैल, शिष्या, घोड़ी, शिक्षिका, देवी, नाग। तो क्या करना है? गाय तो बैल, नर तो नारी जाति, ऐसा हमें करना है, बराबर। जैसे गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, बैल किसान का दोस्त है, और सेंटेंस भी बनाना है। जैसे कि शिष्य, तो शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, और शिष्या की मैं बात कर दूँ, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। उसके बाद शिक्षक, तो शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय, वो तो आ गया है आपको, गाय और बैल का। देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, और देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। उसके बाद घोड़ा, तो महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। उसके बाद सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। संज्ञा पहचाननीय, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक है वो क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, बराबर। जो हमें इंग्लिश में आता है ना, प्रोनाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक, नामवाचक, बराबर। तो ऐसी संज्ञा जो है वो हमें इधर बतानी है। जैसे कि देश की मैं बात करूँ, तो देश वो क्या है? एक जाति है देश की, कॉमन नाउन, इसलिए यह आएगा जातिवाचक संज्ञा में। उसके बाद गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो नदी ये नाम है, इसलिए नदी कई सारी होती है, लेकिन मैं इधर नाम बोलूँ तो वो अलग हो जाती है, इसलिए इधर नदी है वो जातिवाचक, लेकिन मैं गंगा नदी ऐसे बोलूँ तो व्यक्तिवाचक, बराबर। यानी कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके, ये सभी संज्ञाएं हैं। भाषा सज्जता की मैं बात करूँ, आशा विमान चलाती है, तो क्या आएगा उसमें? सिर्फ हमें ये पढ़ना ही है, और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नीम गुणकारी एक पेड़ है। तो इधर जो आशा, नर्मदा, हिमालय, नीम, ये सब क्या है? निर्देश करते हैं हमें कि ये व्यक्ति या कोई चीज़ का नाम है, इसलिए इसको बोलेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। आ गया समझ में? चलो आगे बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर राइट की निशानी हमें करनी है, तो किसके ऊपर? व्यक्ति, जैसे कि मोहन गुजरात, तापी, वीर सावरकर और गिरनार, ये सब क्या है?
कोई नाम है इसलिए ये आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ओके, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। सैनिक, गाय, कुत्ता, नदी, ये सब क्या है? जातिवाचक। आगे हमने पढ़ लिया। जातिवाचक शब्द इनमें से ढूंढकर सूची बनाइए। चलो, कौन कौन से? छात्र, विद्यार्थी कई सारे होते हैं इसलिए। लड़का, तो लड़के कई सारे होते हैं। पर्वत, पर्वत भी कई सारा। गाय, वो भी कई सारे इसलिए जातिवाचक में। नदी, वो भी कई सारी होती है इसलिए जातिवाचक में। पेड़ भी कई सारे होते हैं इसलिए जातिवाचक में। ओके, चलो आगे। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए, जैसे कि भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम का पेड़। तो चलो, व्यक्तिवाचक में क्या आएगा? व्यक्तिवाचक में भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, नीम का पेड़, ये सब व्यक्तिवाचक में। तो बाकी जो बचे वो किस में आएगा? जातिवाचक में, जैसे कि नदी, सैनिक, पर्वत। ओके, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो फ्रेंड्स, इधर हम लेसन नंबर 3 फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।